First of all, most welcome to the budding aspirants who are coming here for to know my journey and my strategy for my IFS as well as civil services examination. Okay, thank you. Yes, thank you. So, first of all, if I give my intro, a brief intro would be like that. I completed my initial schooling from the Rajasthan, that is from the Jaisalmer town of Rajasthan, and later I enrolled in the IIT Delhi in mechanical engineering for doing my BTech. And after doing my BTech, I went to IIT Roorkee for my MTech. And after during my MTech time, I was inclined towards Indian engineering services. So I attempted for that, and for that service, I gave around four interviews. Uh, Four attempts and three interviews. So that was also very hectic because each and every time I was falling short from the selection by very little marks. So, but at the end, 2019, I cleared it, and I got the Department of Central Public Works Department, and which is currently I'm serving also, and my posting is in Delhi also. So that was the first part of my journey in the UPSC. In the initial part of my journey, I was enrolled in the Indian Engineering Services, but after that I wanted to appear for civil services also. So from 2020 onwards, I started preparing for it. So for that matter, as you all aware that in 2020 that was COVID year, so we have ample time for the preparation. So I started preparing for that, and I gave my first CSC attempt in 2020, and in that very attempt, I cleared prelims, mains, as well as and appeared for the interview. But at the final stage, I couldn't make it. So I appeared in 2021 again, and in that again attempt, I appeared again for the interview. But sadly, that I again not cleared it. But in 2022, my CPWD training in engineering services were also going on. So that was my half-hearted attempt, and I just appeared in the prelims, and I know that I would not make it. So that happened also, and I could not clear the prelims. But in 2023, I again appeared and reached till the stage of the interview. But sadly, in this attempt also, I fell short of some marks in the civil services 2023 examination. So, in the civil services, my option was mechanical engineering, and since I was also an aspirant for the Indian Engineering Services and cleared it, so the mechanical engineer optional was very handy to me, and it has its pros and cons also. So we cannot say that it's too good, because earlier in 2017-18 the marks in technical optional was very high, but in the recent time it has reduced largely. So if we talk about our forest service journey, then in the forest service the biggest hurdle for me was clearing its prelims, because its prelims is because, as you all aware, that it's very tough. So I never could cleared it in my all these four attempts. But in this 2023 attempt, due to CSAT, there was very great turbulence in the prelims paper, and many candidates failed in that CSAT paper. So I cleared it, and I was fortunate to appear in the Forest Services mains examination. So my GS part was ready because I was preparing for it for the last 4 5 years. So there was no problem in that. But as you all aware about that, the forestry has two optionals. One was mechanical, and that was also ready from my side. And my civil services mains ended in September 2023, and the mains examination for the forest services was scheduled on, I think, first week of January.
I think last week of November. So there was hardly 2 months left for me. So my second option was forestry. So in the forestry, uh, I will provide. I give my courtesy to the Hornbill classes, and I watched their videos on YouTube, which was free for the aspirants. So I watched them multiple times because it was very hard to read a new book for that sole optional, and Manikandan book was also very heavy. So मैंने वो नहीं पढ़ा, और मैंने बस फॉरेस्ट के वो जो भी ऑप्शनल के वीडियो लेक्चर थे। एक सर है ऑर्बिल क्लासेस में, बहुत ही टैलेंटेड सर है, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए थे। तो मैंने उनको 5-10 बार ऐसे ही मेट्रो में ऑफिस जाते हुए घर पे बैठे बैठे लिखता रहा। तो वो एक तरह से इम्प्रिंट हो गया माइंड में, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिला। मतलब वैसे तो मेरा फॉरेस्ट्री स्कोर सबसे कम था। I mean, I got the least marks in that optional, but it was enough for me to clear the line. So that was forestry. And in mechanical engineering, since I was preparing for it for the civil services, as well as uh, in the civil services as well as forest also, so I got good marks in that. And the biggest hurdle in all these years and all these, after giving the 7 UPS interview, the biggest hurdle for me was the interview part. Because I each and every time in interview I got around 45% marks. I never got more than that. Even in the engineering services attempt of 2019, in which I got selected. So interview was the biggest hurdle for me. So, but luckily in the forest service, I got the Priti Sudan Men's Award, and the madam is known for giving good marks in the civil services as well as forest services. So I got 204 out of 300 marks. So that's how I cleared this examination. So I got the 77th rank also. And if I talk about that's how that was all about my journey for the civil services. It was a very long journey because uh, I started in 2016, and up to 2019 I was stuck in the engineering services because I had to clear it, because you cannot abandon something which you have once you have and committed towards that. So it took me 4 attempts, and that was all on the basis of self-study. I never took any coaching for that also. So, but luckily I cleared it in 2019, and after that I started preparing for civil services at 2019, 2020 to 24. These 4 years was for the civil services. Now I think I am at the saturation stage, so I will settle for the forest service, and this year I will again appear. But let's see how it unfolds. So that was my journey. And if we talk about the strategy, so if we talk about prelims, so yeah, I can say that each and every time whenever I appear seriously in this examination of civil services, I cleared prelims each and every time. Though forest prelims was tough for me, so that I cleared only in this 2020. But for the remaining uh, 3 attempts of civil services, I cleared prelims each and every time, and prelims was never a hurdle for me, as it appears for the various candidates. So if I can say that my mantra for the prelims was that your core, that is your static part, should be crystal clear to you. You should not have any hesitation towards that. That are the subjects like polity and more and history, as well as geography and art and culture. These are the core part of the syllabus in the prelims, and they are static too. These are low hanging fruits. If you are preparing for this examination seriously, you cannot. I mean, you cannot just afford to ignore these subjects. So I initially referred to various materials online, as well as various coaching materials also. But at the end, I had to make my notes, because the total content of these syllabus are huge. You cannot just revise at the
1 or 2 days before the main examination. So you have to make your notes. So for the history में जैसे एंशियंट की बात करें तो एंशियंट में मतलब हिस्ट्री मुझे हमेशा से fascinate करती है। हिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट भी है, तो इसमें मुझे ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि इसको पढ़ना भी है। ये तो एक तरह से ऐसे हो गया कि आप कॉमिक्स पढ़ रहे हो। तो हिस्ट्री बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो एंशियंट से शुरू की जाए तो आर एस शर्मा का जो बुक था ओल्ड एनसीईआरटी जिस पे बेस्ड थी, तो वो बुक बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प है और उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और पढ़ने में आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। तो इस हिसाब से आर एस शर्मा को मैंने प्रेफर किया। उसके साथ ही साथ तमिलनाडु की एनसीईआरटी आती है एंशियंट के लिए, तो वो भी मैंने प्रेफर की। तो उन दोनों को पढ़ने के बाद उनसे नोट्स बनाया, जो भी कीवर्ड्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, प्री प्लस मेंस, उनके अपने नोट्स बनाए। ठीक है, उसके बाद मिडाइवल आता है। मिडाइवल एक मतलब कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से इतना पॉपुलर नहीं है, इतना ज़्यादा उसका वो नहीं है। तो मिडाइवल के जस्ट मैंने ओल्ड तमिलनाडु की एनसीईआरटी जो थी उसी से नोट्स बना लिए, दैट्स इट। उसके लिए अगर बेसिकली अगर कहीं भी मेंस में या फिर कोई भी क्वेश्चन आता है तो ऐसा नहीं हो कि हमें बिल्कुल ही आइडिया ना हो, थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए। सो उसके अलावा अगर हम बात करें मॉडर्न की, तो मॉडर्न इज़ द क्रक्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन, प्री एज वेल एज और means also some part of it. So in modern, the spectrum book is the holy bible of the modern. So but that is very bulky. The student क्या करते हैं कि उसको एक बार पढ़ेंगे, अंडरलाइन करेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, but that is I mean your efforts in this examination should be closed loop effort. It should not be open ended and your material should be limited. So उसका ऐसा है कि उसको एक बार आपने नोट्स बना लो, उसका हर एक इवेंट का हर एक क्रोनोलॉजी वाइज या जैसे भी आपको है उसका आप नोट्स बनाओ। इसमें बहुत एफर्ट लगता है, बट बिलीव मी 50 to 60 पेजेस में सारी स्पेक्ट्रम कवर हो जाएगी और ये आपके साथ आपकी जितनी भी प्रिपरेशन की जर्नी है उसके साथ रहेगी। तो मेरा यही था कि मैंने उनके नोट्स बना लिए। अब मैं उसको एग्ज़ाम से एक दिन पहले, एक रात पहले, 2 घंटे पहले कभी भी पढ़ सकता हूँ। मतलब उसका इतना रिवीजन हो गया कि उसका एक एक लाइन का मुझे उसका याद रहता है। सो ये है कि इसमें मॉडर्न स्पेक्ट्रम का तो हो गया। तो उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है, तो लेकिन वो तो प्री में आती नहीं है, तो वो प्री में आती नहीं है, लेकिन उसका क्या है कि करना उसको भी है। तो इसलिए उसके लिए मैंने कुछ कोचिंग मटेरियल जो ऑफलाइन मिलता है या फिर ऑनलाइन भी कुछ सोर्सेज से पढ़ा, उसको अपने इस तक प्रिपेयर किया, बट वो एक लिमिटेड था क्योंकि मुझे पता है इसका इतना कॉस्ट बेनिफिट है नहीं। सो एंड वर्ल्ड हिस्ट्री ऑल्सो दो प्री में आती नहीं है तो उसको पढ़ने का मतलब नहीं है, तो इसलिए। लेकिन उसको एक तरह से एक बार आप 10-20 पेज का अपना समरी बना लो, किसी भी आपको इजीली मिल जाएगा ऑफलाइन किसी भी कोचिंग का मटेरियल, तो उसको अपने स्तर पर पढ़ के उसको समझ के फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, ये सब वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 जितने भी हैं, क्योंकि ये जो वर्ल्ड हिस्ट्री है ना, इसका लिंकेजेस ऐसे एथिक्स में भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वर्ल्ड के जो इवेंट्स हैं उनको अगर आप एनालाइज करके अपने ऐसे एथिक्स में या किसी भी जगह आप पुट करते हो, दैट विल फेच यू मोर मार्क्स, बिकॉज द मोर यू एनालाइज, मोर योर अप्रोच विल बी एनालिटिकल, देन पीपल कॉपी चेकर एंड एग्जामिनर विल अप्रिशिएट इट। सो वो भी पढ़ना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि उसका कॉस्ट बेनिफिट नहीं है, मेंस में एक क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स में आता नहीं है, तो वर्ड हिस्ट्री छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हो कोई नहीं, बट एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट यू शुड नो बेटर दैट कि वर्ल्ड में हुआ क्या है, क्या एक चीज़ें कैसे, कम्युनिज़म एंड कैपिटलिज्म ये सब कैसे इंटरलिंक्ड हैं, और हिस्ट्री क्या रही है इसकी, एज बिकॉज एज अ सिविल सर्वेंट this is expected from you that you are a better known citizen from the rest of the world and layman around you. So world history you should read and ऐसा नहीं है कि उसके घुस ही जाओ उसमें, ऐसा हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है प्रिपेयर करना अपने, बस उसको हमें 10-20 पेज की समरी बनानी, उसका पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा हुआ है, मोटा मोटा क्या क्या था, ताकि आप उसको कैसे भी रिलेट कर सकें। ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखें तो हिस्ट्री पार्ट के लिए ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी है। ज्योग्राफी के लिए बेसिकली मैंने जो भी यूट्यूब पे फ्री मृणाल सर का एक
मृणाल सर के चैनल पे राजतली सोलंकी मैम के लेक्चर वीडियोस थे, तो मैंने वो रेफ़र किए थे। 58 या 60 कुछ वीडियोस थे, तो मैम ने काफ़ी अच्छा ढंग से, वो पुराने वीडियोस हैं, आई थिंक 2017-18 के वीडियो हैं, तो बट मेरे लिए वो एक तरह से काफ़ी अच्छे लगे मुझे। तो उनकी प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मिल गई थी, तो बस उसको एज ए, जैसे हम शादी का एल्बम नहीं देखते, बस उसको स्लाइड्स देखते रहते थे, बार बार देखते रहते थे, तो एक तरह से वो माइंड में इम्प्रिंट हो गई। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन कभी ख़राब नहीं होता था मेरा, सही हो जाता था उससे। उसके अलावा मैंने कोई भी और सोर्स से ज्योग्राफी का नहीं पढ़ा, बस वो 50-60 लेक्चर देखे और उससे इनिशियली अपने नोट्स बनाए थे, बट मुझे नहीं लगता उन नोट्स का कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, बिकॉज स्लाइड्स आर एग्जॉस्टिव एंड स्लाइड्स को अगर एक बार गो थ्रू कर लिया तो आपका हो जाता है। सो ज्योग्राफी के लिए मैंने वही प्रेफर किया था। एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए विजन आईएएस के जो नोट्स मिलते हैं मार्केट में, वही मैंने रेफ़र किए थे। उसी से अपने कुछ नोट्स बना लिए, कुछ ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू बना लिए, और इसलिए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को देख के अपने को ट्रेंड पता चल ही जाता है कि कौन से क्वेश्चंस वो ज़्यादा पूछ रहे हैं, किस मतलब बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आप अपना एक अपना एक सेट ऑफ नोट्स बना लो, और उसके थ्रू ही आप कर पाओगे। हाँ, तो ये तो स्टैटिक पार्ट हो गया। अब आता है करंट अफेयर का पार्ट। तो करंट अफेयर इस एग्ज़ाम की बैकबोन है। अगर करंट अफेयर नहीं हो तो ये एग्ज़ाम आई थिंक इतना टफ ना हो जितना अभी है। तो करंट अफेयर के लिए मेरा एक ही मंत्र था, हमेशा से ही रहा है कि मैंने विजन आईएएस के जो मंथली करंट अफेयर है उसी को रेफ़र किया। तो उसमें क्या है कि करंट अफेयर में जो आपके कुछ भी टॉपिक्स है, जैसे G20 हो गया, आसियान हो गया, ये इस तरह के टॉपिक आते रहते हैं। आप अपने नोट्स मैंने तो एवरनोट पे बनाए थे, क्योंकि ऑनलाइन नोट्स एक क्लोज लूप प्रोसेस है, उसको आप कभी भी अपडेट कर सकते हो, उसमें चीज़ें ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें रिकरिंग है, आती रहेगी। G20 आज आए, अगले महीने आएगा, अगले साल भी आएगा, 6 महीने बाद भी आएगा, वो टॉपिक आता रहेगा। हर बार आप उसको लिखते नहीं बैठोगे, तो इससे अच्छा है कि आप उसी को एक जगह लिखो, उसके नीचे कुछ नया इनिशिएट कुछ हुआ है, उसको ऐड करते चलो। तो एवरनोट पे मैं बना के रखता हूँ इसको। तो बस मैगज़ीन में जो भी होता है वो मेरे नोट्स में है, तो उसको रिवाइज ईजीली हो जाता है, और एक तरह से मेरा खुद का सोर्स है, तो मुझे इतना उसमें दिक्कत नहीं आती। तो 2-4 सालों से वो जो इकट्ठे हो रहे हैं, इससे मेरा मेंस का मटेरियल प्रिपेयर हो जाता है, प्रीलिम्स में भी हेल्प मिलती है, और आप एक कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मैं इस तरह से एक बार करंट अफेयर्स को गो थ्रू कर लूँगा तो मेरा निकल जाएगा। तो करंट अफेयर के लिए मेरा तो एक ही मंत्र था, विजन आईएएस की मंथली मैगज़ीन। हाँ, ऐसा है कि अगर टाइम ना बचे तो लास्ट में PT 365 भी पढ़ते हैं लोग, बट मैंने उसको भी रेफ़र नहीं किया, क्योंकि मेरे पास हमेशा से अपना मंथली का अपडेटेड मटेरियल होता था, जो मैंने अपने पहले तो इनिशियली एवरनोट पे मोबाइल भी बनाता था नोट्स में, फिर एवरनोट पे स्विच हो गया। तो वो मेरे पास एक है अपना, उसको मैं जैसे पॉलिटी है तो उसको मैं मतलब 2-4 घंटे में पढ़ सकता हूँ, इकोनॉमी 2-4 घंटे में, ऐसे करके उनको फटाफट निपटा सकते हैं। तो इस तरह से करंट अफेयर भी हम कर सकते हैं उसके हिसाब से। एंड इकोनॉमी के लिए, यस, इकोनॉमी इज़ अ वेरी I would say difficult as well as easy part of the prelims, because in economy there are several concepts in which questions appear, such as GDP and market and banking finance and all that. अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप इकोनॉमी में कर पाएंगे उनके क्वेश्चंस को सॉल्व इजीली। एंड इसके अलावा उसमें कुछ करंट अफेयर बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी करंट अफेयर आप गो थ्रू करेंगे विजन वाला या कोई भी मटेरियल, तो उससे आपके निकल जाएंगे। और थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज अनसर्टेन। आई मीन मेरा तो अप्रोच ये रहता था, 100 क्वेश्चन है तो मैं 100 ही करता था, पूरे 100 करता था। मुझे पता है अगर 36 गलत होते हैं तब तक मैं सेफ, 36 से ज़्यादा गलत होंगे तो मेरा गया। तो लेकिन ये एक रिस्क है, आई मीन आई वुड नॉट सजेस्ट टू एवरीवन, बट मेरा ऐसा था क्योंकि मेरी सर्टेनिटी बहुत कम होती थी, मुझे लगभग लगता था कि होगा यही, बट वी कैन नॉट से फॉर सर्टेन। सो मैं उसको इनिशियली छोड़ देता सवाल को, लेकिन जब जाते जाते लास्ट में जब टाइम कुछ बचता था तो मैं उसको मार ही देता था, क्योंकि 2 ऑप्शन हमेशा एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेंगे 1-2 जो आपको गट फीलिंग के हिसाब से करना पड़ेगा। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी रिस्की इन दिस प्रीलिम्स, एंड मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स इसी फेज में जाके फंसते हैं। जैसे अभी क्या हो गया है कि प्रीलिम्स बहुत ही ज़्यादा
अनसर्टेन आ गया है। इसमें आपके 4 ऑप्शन आपको पता होंगे तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज़ तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब एक आप अंधेरे में तीर मार रहे हो। सो इस केस में भी जैसे पिछली बार भी मैं अगर मैं देखूँ CSE 2023 का जो मेरा अटैम्प्ट था, जो काफ़ी उसमें मतलब UPSC की हिस्ट्री का लोवेस्ट कट ऑफ गया था, 74 ही गया था। तब भी मेरे 97 मार्क्स थे GS में, और मैं मतलब मेरी प्रिपरेशन उतनी भी नहीं थी जितना मैं हर बार करता था। तो इतने मतलब मार्क्स ठीक ठाक आ गए। इसका रीज़न यही था कि जो मेरे लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, वो सवाल तो गलत होंगे। बचे जो भी अनसर्टेन एरियाज, उसमें है कि आप अपने अपने आप को बैक करो, आप अपनी गट फीलिंग्स को बैक करो। आप थोड़ा 50-50 का चांस रहता है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो उतने ज़्यादा आपके चांसेस है कि आपके सवाल सही होंगे। सो इस बेसिस पे मैंने 100 ही किए थे मेरे। शायद आप देख लो, मतलब 37-36 कुछ गलत हुए होंगे, 36। तो फाइनली निकल गया। और CSET के बारे में मैं बताऊं तो CSET इनिशियली तो जैसे हम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है तो CSET को भी सीरियसली लिया। CSET तो मतलब मैंने तो 2020 के अटैम्प्ट में पेपर भी CSET एग्ज़ाम हॉल में जाके देखा, कुछ ऐसा है। तो वो एक एटीट्यूड रहता है, जैसे सबका ही रहता था, लेकिन इस बार मैं ऐसी सिविल सर्विसेज UPSC ने इस बारे में तोड़ दिया लोगों का। तो 2023 का जो पेपर आया CSET का, जो इनिशियली 1 आवर में हमने कुछ करना चालू किया, देखा तो एक 20 सवाल हो रहे हैं। तो लेकिन हाँ, ये है कि आपको इसमें इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है कि 20 ही हो रहे हैं तो फंसे जाए, उसी को करते रहें। वहीं के छोड़ दो 1 घंटे के बाद, उसके बाद सारे कॉम्प्रिहेंशन करो। किया जैसा कि मैंने किया, और जो भी मेरे साथ जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट थे जो क्लियर हुए एग्ज़ाम में, निकला कॉम्प्रिहेंशन को किया, अपना अटैम्प्ट को बढ़ाया। फिर जो लास्ट के 15-20 मिनट बचे, उसमें जितने भी सवाल इजीली थे, जो भी करने लायक थे, छोटे छोटे सवाल थे, मतलब जिसको आप देख के आपको लगे मैं कर सकता हूँ, तो वो लास्ट के 15-20 में करें। तो मेरे 45-50 के आसपास मेरा अटैम्प्ट बैठा था CSET पे, उसमें लगभग 80 मार्क्स मेरे को मिल गए। तो मतलब बात बन गया था। बट दैट वाज ए वेरी शॉकिंग CSET फॉर द एस्पिरेंट्स एज वेल एज मी एज वेल। सो बट स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि देखो, ऐसा है कि UPSC अगर टफ भी बनाता है ना CSET, तो उसको कुछ बंदों को लेना ही है। ऐसा नहीं है कि वो सबको एलिमिनेट कर दे। तो जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है ना, वो सबके लिए ओपन है। अब उसमें आप कॉम्प्रिहेंशन में कितना अच्छे से कर पाते हो, इंग्लिश आपकी कैसी है, इस पर डिपेंड करता है आप कितना एनालिटिकली उसको सोच पाते हो। और दूसरा कि आपको मैथ्स के सवालों में आपको किस में कॉन्फिडेंस है। किसी को प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस होता है, किसी को नंबर सिस्टम में कॉन्फिडेंस होता है, किसी को कैलेंडर वाले सवालों में होता है, किसी को एनालिटिकल सवालों में होता है। ये सबका अपना अपना है। मतलब कोई अच्छे मार्क्स भी ले आता है CSET में, क्योंकि सब उसको आता है। पर हमारे को एज ए इंजीनियर एंड एज ए IIT आई वुड से दैट कुछ एनालिटिकल सवाल हम कर पाते हैं बिना किसी फार्मूला वगैरह के, तो हम उसी पे फोकस करते हैं। जो भी छोटा सवाल दिखेगा, जो हमें पहली इटरेशन जो होगा इनिशियली 1 आवर, उसमें हम सारे सवालों को गो थ्रू करते हैं। पता चल जाएगा कि ये सवाल भरने लायक है, ये नहीं है। असर्शन रीजन में पता चल जाता है कि ये सवाल करने लायक है, तो उन क्वेश्चंस को हम टारगेट कर लेते हैं कि ये कर सकते हैं। अगर इसको अगला 1 मिनट और दिया जाए या 2 मिनट और दिया जाए तो ये कर सकते हैं। ऐसे करके एक बार मैपिंग हो जाए सवालों की, तो पता चल जाएगा कि इसमें हम नहीं फंसना है। बड़ा सवाल है, पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर भी होगा नहीं होगा कोई पता नहीं है, 5 मिनट और लगेगा। और ऐसे सवाल जो पढ़ना ईजी है, 1 मिनट में पढ़ पा रहे हो, कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, पूछ कह रहा है, स्ट्रेटेजी दिमाग में आ रही है, करना कैसे है, अगले 1 मिनट में कर सकते हो, तो यू शुड गो थ्रू दैट। तो इसलिए CSET में सबसे क्रिटिकल जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी वाला चीज़ है, वो है कि आपका क्वेश्चन का सिलेक्शन। 100% सवाल कोई नहीं कर सकता, कितना भी कोई अच्छा कैंडिडेट हो या कोई कोचिंग का टीचर भी हो, वो भी नहीं कर पाएगा 3 घंटे में। सो ऐसा तो मत ही सोचो कि मेरे को सारे सवाल करने कुछ लिमिटेड ही है। तो उसमें भी अगर मान लो कुछ सवाल ऐसे हैं जो सर्किल टेबल पे बैठे हैं कि ये इसके यहाँ बैठा है, वहाँ बैठा है, आपको पता है ये कर दूंगा मैं, एक बार मैंने ऐसे बनाया सर्किल, उसमें मैंने देखा तो कर दूंगा, तो वो सही होना चाहिए, वो करना ही है। कुछ ऐसे जिसकी जैसे फैमिली रिलेशन क्या है, इसके मदर के, इसके फादर क्या लगेगा, ये वो सवाल भी किए जा सकते हैं, मतलब वो डूएबल है।
अब कुछ है कि ऐसी कुछ ट्रिक बेस्ड है जो आपको नहीं आता, मतलब कोई सीरीज़ दे दिया, उसका 10th टर्म क्या होगा आप बताओ। अब आप 10th टर्म को आप कितना भी सोच लो, दिमाग लगा लो, इधर सोच लो उधर सोच लो, एट दी एंड एग्ज़ाम के हॉल में वो आएगा ही। उसमें सोचने में ज़्यादा दिमाग नहीं लगा। इनिशियली 1 मिनट में सोचना है, अच्छा कुछ बन रहा है दिमाग में आ रहा है ठीक है, अदरवाइज़ उसको स्किप ही कर दो, क्योंकि उसका कॉस्ट बेनिफिट है नहीं। वो आपके 5 मिनट और भी लेके जाएगा और आपको नंबर मिलेगा। तो ये आपको टारगेटिंग ऑफ द क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सी सेट में। और आज भी जैसे सिविल सर्विस 2024 का जो पेपर आने वाला है, अब ये नहीं पता लोगों की यूपीएससी इस बार उनको मतलब टफ बनाएगा इजी बनाएगा, ये तो वही जानता है। लेकिन जो मेरा पर्सपेक्टिव है कि ऐसा डुएबल होगा, मतलब कैंडिडेट अगर थोड़ा सीरियस है, थोड़ा जानता है मैथ्स को, तो वो कर पाएगा, बशर्ते कि वो अपने क्वेश्चन को ईगो पे ना ले, लेकिन बस मैं तो करके मानूंगा, मैं तो इसको नहीं कर रहा तो मेरा बेइज्जती हो जाएगी, मेरे फ्रेंड क्या करेगी। ऐसा नहीं है, फ्रेंड आपका कुछ नहीं बोलेगा अगर आपका सी प्री क्लियर होता है। नहीं होता है तो चाहे कितना भी 30 मार्क का नो, आप सी सेट में दोनों आपको जीएस भी पढ़ना है, ठीक है। और प्री इज़ इनिशियल स्टेज, इसका तो मार्क्स भी ऐड नहीं होते, तो इसमें तो ज़्यादा ऐसा वो नहीं है। तो यही है कि आप बेसिक चीज़ें करके जाओ। जीएस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बट सी सेट जैसा कि हवा बन गया इस बार, तो सी सेट में भी आई थिंक लोगों को लगभग 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए, 50 नहीं तो 48-46 तो हो ही जाए, वो तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक्यूरेसी अगर थोड़ी कम भी होती है तब भी 70-80 नंबर तो लाए जाने चाहिए। तो वन आर दो जिसमें लोगों के 150 नंबर आ रहे थे, उसमें 100 से ज़्यादा आ रहे थे, वो तो गया। हो सकता है इस बार आ जाए, लेकिन आई थिंक अब थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक और थोड़ा प्रैग्मेटिक होकर क्वेश्चन किया जाए तो बेटर है। So that was for the prelims, and if we talk about the mains, then in the forest service mains, since the talk is about the forest service and IFS examination, so I should refer to that first. And in the forest service, my optional was the first was the forestry and second was the mechanical engineering. So in the forestry, as I said that कि मैंने मणिकंदन बुक मुझे सजेस्ट की लोगों ने, बट यार वो बुक इतनी बड़ी है और उसमें मतलब ऐसा पढ़ना हो अगर किसी को सिर्फ फॉरेस्ट ही तैयार करना है तो उसके लिए तो बेस्ट है। जैसे हम जैसे लोग हैं जो सिविल सर्विस, उनका प्लान ये है, फॉरेस्ट अगर प्री निकला तो प्लान भी है, तो उस केस में हमको तो हॉर्नबिल के लेक्चर 2 महीने में 10 बार कर देख लो, वो बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है, मतलब कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से, क्योंकि वो सर के वीडियोस में आपको 150 स्पीशीज़ के साइंटिफिक नेम याद हो जाएंगे और जो भी उसका बेसिक है वो आपको पता चल जाएगा। तो बट माई मार्क्स वॉज लोएस्ट अमंग माई बैच इन द फॉरेस्ट सर्विस 2023, एंड आई गॉट अराउंड 130, नॉट 130, 170 आउट ऑफ 400 इन फॉरेस्ट्री। मतलब ये सबसे लीस्ट मार्क्स मेरी है फॉरेस्ट्री में। मैं देख रहा था लोगों के 250 भी आए हैं, किसी के 240 भी आए हैं, बट आई गॉट ओनली 170। बट इसका कोई अफसोस नहीं है, ठीक है, इतना तो आया। ये मतलब सिर्फ वीडियो देखने से इतने आ गए, वो बड़ी बात है मेरे लिए। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो मेरा सब्जेक्ट था, उसमें मैंने कुछ स्पेशल तो कर नहीं पाया। जो भी टेस्ट सीरीज़ लगाई थी, नेक्स्ट IAS कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ आती है, तो वो मैंने सिविल सर्विस के लिए लगाई थी, वही वापस देख ली एक बार फॉरेस्ट सर्विस के लिए। और जो बुकलेट आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी आती है, मिड नेक्स्ट IAS की, और सिविल सर्विस के लिए आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको आप गो थ्रू करते रहना। वो क्योंकि इनमें क्या है कि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इन दिस एग्जामिनेशन सिविल सर्विस एंड फॉरेस्ट सर्विसेज के मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ बात करें तो इतने टफ नहीं होते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आप उसको कर सकते हैं। आपको देखते पता चल जाएगा ये क्वेश्चन 5 बार आया हुआ है, आपको आता है, बट वो गिवन टाइम फ्रेम में उसको एक्यूरेटली करना, और उसमें भी आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो ये भी मैटर कर जाता है सिविल सर्विस में, फॉरेस्ट सर्विस में। तो मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक तरह से प्रिपेयर्ड था, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रखे थे, टेस्ट सीरीज नेक्स्ट IAS की लगा रखी थी, तो मेरे को कॉन्फिडेंस था कि इसमें मेरे नंबर आएंगे, तो उसमें मेरे आए भी। आउट ऑफ 400 मेरे 230 मार्क्स आए। सो दैट वाज फॉर द ऑप्शनल, एंड third is, and one more thing, for the technical optionals like mechanical and civil engineering and electrical engineering in forest services, as we all know that difficulty level of this paper of the forest services more than civil services in
terms of if we talk about the टेक्निकल ऑप्शनल्स। सो ठीक है, मतलब अगर आप सिविल सर्विस की भी कर रहे हो तो फॉरेस्ट के भी क्वेश्चन लगा लेने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना तो सही रहता है। और इसमें 2 पेपर और भी होते हैं, जैसे इंग्लिश का पेपर होता है, वो 300 मार्क्स का होता है, और जनरल स्टडीज़ का होता है, वो भी 300 मार्क्स का होता है। अब जो ये 2 पेपर है ना, ये हम जैसे जो कॉमनर हैं, जो फॉरेस्ट सिविल का देते हैं लेकिन फॉरेस्ट में भी अपीयर होते हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश इसलिए इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश क्योंकि बहुत ही अच्छा मार्क्स फैच करने वाला है इनमें। तो यहाँ पे मेरे बैच में मेरे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे 160, मतलब मुझसे कुछ ही 2 लोग होंगे जिनके 170 कुछ या 165 कुछ नंबर थे फॉरेस्ट सर्विस में आउट ऑफ 300। सो मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। उसका भी रीज़न था कि ग्रामर को अच्छे से करना, और आप ऐसे लिखते हैं तो ऐसे में मेरे सिविल सर्विस में भी ठीक नंबर आते हैं, तो इसमें भी मेरे को ठीक ही मार्क्स मिल गए। एंड जीएस में भी मैंने सिविल सर्विस में जो मैं अपना जीएस में करता हूँ वही मैंने अप्रोच रखी, वैसे ही इंट्रो, वैसे ही बॉडी, वैसे ही कंक्लूजन, वैसे ही कोटेशन। मेरे को कोई 100 से ज़्यादा कोटेशन बताते हैं तो वो मैं उसमें फुल मतलब जहाँ भी मेरे को लगता था मैं लगा देता था। तो जीएस में भी मेरे को वन ऑफ द हाईएस्ट ही मिले बैच में, क्योंकि इस बार जीएस में फॉरेस्ट सर्विस में बहुत कम मार्क्स मिले लोगों को। सो आई गॉट 120 आई थिंक आउट ऑफ 300, बट दैट वाज ऑन द हायर साइड। और इस बार बहुत कम लोगों को उसमें से भी कम मार्क्स आए। एंड इंटरव्यू में तो लकीली ये तो एक तरह से पूरा लकी है, जैसा मैंने इस बार ऑब्ज़र्व किया है। और इस बार क्या, मैं पिछले 7 साल 8 साल से कर ही रहा हूँ। 7वां अटैम्प्ट था मेरा इस बार, 7वां इंटरव्यू था फॉरेस्ट सर्विस में इस बार। मैंने टोटल अभी तक लाइफ में 7 यूपीएससी के इंटरव्यू दिए, 3 तो मैंने इंजीनियरिंग सर्विस का इंटरव्यू दिए हैं, 3 ही मैंने सिविल सर्विस के इंटरव्यू दिए, 1 ही मेरा फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू ही मेरा एक तरह से अगर सिलेक्शन हो रहा था। बट इस बार मतलब स्टार थोड़े अलाइन हो गए, प्रीति सुधार मैम जी गए, तो उन्होंने मुझे 300 में से 204 मार्क्स दिए, दैट इज़ 68% मार्क्स। तो वो एक बहुत बड़ा बूस्ट था मेरे लिए, क्योंकि यहाँ कहीं न कहीं आप जैसे प्रिपेयर करते हो तो थोड़ा सा आयोटा ऑफ लक आपको यूपीएससी से भी चाहिए होता है, क्योंकि शेयर हार्ड वर्क से नहीं होगा, कहीं न कहीं थोड़ा तो आपको लक भी चाहिए। तो मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ कि मुझे इस बार इंटरव्यू में थोड़ा सा कुछ मिला इन मार्क्स में। सो इस हिसाब से मेरी 77 रैंक फॉरेस्ट में तो आ गई। अगर हम बात करें कि मेंस के आंसर राइटिंग कि कैसे जीएस में मैंने अपना स्कोर इम्प्रूव किया, क्योंकि मैंने 3 मेंस दिए सिविल सर्विसेज। तो फर्स्ट टाइम मैंने सिर्फ 2 या 3 टेस्ट दिए, क्योंकि कोविड का टाइम था और मुझे इतना मतलब इनिशियल ईयर था मेरा, पहला ही अटैम्प्ट था, मेरे पास टाइम भी लिमिटेड था और कवरेज भी ज़्यादा करनी थी। तो मैंने उसको 2-3 टेस्ट ही किए, जस्ट कि मैं 3 घंटे में 20 क्वेश्चन कर पाऊँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसमें मेरे को 360 मार्क्स आ गए थे आउट ऑफ 1000 GS 1 2 3 4। तो मतलब वो अच्छा 90, अगर हम देखा जाए तो 90 मार्क्स इन ईच पेपर आई गॉट इन माई वेरी फर्स्ट GS एंड फर्स्ट अटैम्प्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। एंड उस साल मेरे ऐसे में बिल्कुल ऐसे लिख के ही नहीं गया था, एकदम मुँह उठा के गया था। और एक दोस्त का देख लिया मैंने कि उसने कैसे स्ट्रक्चर बनाता है ऐसे का, वो देख लिया कैसे ऐसे बनता है। बट आई गॉट 130 मार्क्स ऐसे इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। ठीक है, तो जो भी कुछ उसमें लगा होगा। तो ये मेरा मेंस का था। तो सेकंड टाइम मैंने 2021 में मेंस लिखा, तो हुआ यूँ कि सिविल सर्विस का रिज़ल्ट आया, उसके शायद 5-10 दिन बाद ही प्रीलिम्स था 2021 में, और मेरा नहीं हुआ। तो फिर 5-10 दिन बचे मेरे पास तैयारी करने के लिए प्रीलिम्स की। तो मैं 2021 के प्रीलिम्स को जैसे तैसे मैं निकाल दिया, और फिर बचे 3 महीने फिर से। तो मैं कुछ ऐसा सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाया अपने मेंस में। तो मैंने ऐसे इस बार कोई प्रिपेयर नहीं किया। फिर मेरा इसमें इंजीनियरिंग सर्विस में ट्रेनिंग चल रहा था, तो उस दौरान मैं ज़्यादा फोकस भी नहीं कर पाया। और फिर सेकंड बार में नहीं हुआ तो थोड़ा हार्ट ब्रेक भी था मेरे लिए। तो मैं नहीं उस अटैम्प्ट स्किप भी करना चाह रहा था 2022 में। बट प्रीलिम से एक दिन पहले हमारा ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग सर्विस की ट्रेनिंग के दौरान हम किसी इंडस्ट्री में विज़िट करने गए थे। सैटरडे को हमारी विज़िट थी किसी ग्लास फैक्ट्री में, साउथ जापान की कंपनी, वो विज़िट करके आए। मेरा बिल्कुल ही मन नहीं था प्रीलिम्स देने का। अगले दिन जैसे तैसे मैं उठ के चला गया प्रीलिम्स देने, जैसे यहाँ पर
तो वो एक्सपेक्टेड था कि इतना भी कैजुअल नहीं हो सकता है यूपीएससी के साथ, तो नहीं निकला। और कोई ऐसा अफसोस भी नहीं है कि मुझे पता था एक ब्रेक लेना था, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड मेरे माइंड में ये था कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग को चेंज करके कोई और ऑप्शन लेना चाहिए, क्योंकि कितना भी मैं अगर इसमें मेहनत कर रहा हूँ, कितना भी कर रहा हूँ, मार्क्स 250 पर ही जाकर जा रहे हैं। वन आर दो डेज इसमें 350 लोग लाते थे, 370, 350, मतलब 300 से ज़्यादा तो बहुत लोग के आते थे टेक्निकल में। 2016, 17, 18 वाला जो 3 साल का वो टाइम था, उसमें लोगों ने बहुत मार्क्स खींचे टेक्निकल में या इन ऑप्शंस। बट फिर यूपीएससी थोड़ा समझ गया, उसे पता चल गया कि यहाँ पे लोग गेम कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर नॉर्मलाइजेशन शुरू कर दिया। तो टेक्निकल ऑप्शन में लोग ज़्यादा नंबर ले ही आते हैं। मान लो मैं 320 लाया था वैसे तो, नॉर्मलाइज करके 360 पहुँचा दिया, 50-60 नंबर कम कर दिया। तो मुझे लगता है कहीं कहीं अनफेयर भी, क्योंकि मैकेनिकल या कोई भी टेक्निकल ऑप्शन इतना ईजी नहीं होता है। वहाँ पे आपको कैलकुलेटर लेके पूरा सॉल्व करना पड़ता है, 3 घंटे के अंदर आंसर निकालना पड़ता है, वो भी एक्यूरेटली। तो इसलिए फिर मैंने सोचा उसको चेंज करूँगा, लेकिन सैडली चेंज तो नहीं हो पाया, क्योंकि इतना हिम्मत नहीं था कि फिर से एक नया ऑप्शनल प्रिपेयर करूँ। सोचा सोशियोलॉजी लूँगा, साइकोलॉजी लूँगा, ऐसा कुछ लूँगा, लेकिन एट दी एंड तो पता चला कि ये 250 भी नहीं आएंगे उसमें। अगर चेंज करके फिर से नया शुरू करूँगा तो हो सकता है शुरू में कम आए, फिर बढ़े। इतना टाइम है नहीं, वैसे भी 3 अटैम्प्ट हो चुका है। तो फिर मैंने सोचा चलो एक और दिया जाए, जो होगा होगा। इसके बाद तो मैं अमेंडन ही कर दूँगा, एक बार नहीं करना उसके बाद, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग सर्विस में भी मेरे को नेक्स्ट ईयर मेरा प्रमोशन है, तो उसके बाद टाइम नहीं हो पाएगा पढ़ाई का। तो ये एक तरह से लास्ट ही मांगा है। तो इसमें मैंने मैकेनिकल को ही जारी रखा, बट थोड़ा उसमें टेस्ट सीरीज वगैरह अच्छे से लगाई, तो फिर से 260 आए मेरे मार्क्स इस बार सिविल सर्विस में। बट माय जो मेरा इंटरव्यू, मेरा सिलेक्शन जिसने मेरा रोका सिविल सर्विस, वो मेरा इंटरव्यू ही था। आई गॉट 130 मार्क्स इन द इंटरव्यू। दिनेश दास सर का बोर्ड था, उन्होंने मतलब काफ़ी फ्लक्चुएशन था उनके मार्क्स में। किसी मेरे जो साथ में जो भी बच्चे एग्ज़ाम इंटरव्यू देने उनके बोर्ड में गए, किसी को 150 मिला, किसी को 180 भी मिला, तो काफ़ी फ्लक्चुएशन था। तो मेरे को 130 मिला। 130 मतलब एक तरह से वीटो ही कर दिया उन्होंने, आपको तो नहीं लगी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से वहाँ से तो नहीं हुआ, पर फॉरेस्ट सर्विस में उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स दिए, 204 दे दिए। तो ये एक तरह से काफ़ी बड़ा एक तरह से गैम्बल ही है कि कोई बोर्ड आपको किसी दिन अच्छे मार्क्स देता है, कभी नेगेटिव देता है। एक इंसान को मैं जानता हूँ जिसको आई थिंक 115 मार्क्स दिए थे 115 सिविल सर्विस के इंटरव्यू में, और 5-7-10 दिन बाद ही उसका फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू था, उसमें उसको 200 से ज़्यादा नंबर। मतलब इतना ज़्यादा सब्जेक्टिविटी इंटरव्यू की स्टेज में है कि आप उसको आप किसी तरह से डिफ़ाइन नहीं कर सकते। लोग उसके लिए मतलब मॉक टेस्ट देते हैं, काफ़ी सारे चीज़ें करते हैं, लेकिन उसका कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से इंटरव्यू का था। एम आई ऑडिबल टू रीच वन ऑफ यू, बिकॉज आई थिंक देयर इज सम वॉइस कंसर्न। सो हेलो, कोई कमेंट करके बताएगा आवाज़ आ रही? हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, so I think nobody is replying. So the interview part is over, and I think let's switch towards the motivational aspect of this examination, because it's a long process and you don't know, you never know कि आपको मतलब उसको आप कैसे कैरी ऑन करोगे, कैसे उसको लेके चलोगे। सेल्फ डाउट्स भी आता है, रिग्रेट्स भी होते हैं, लोग अपनी लाइफ में आगे निकल रहे हैं और वहीं स्टक हो जाते हैं। ये सब चीज़ें इसमें होती है। मतलब मेरे को भी पर्सनली भी फील होता है कि इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट
since we have committed towards it, so we should finish it better. So एक मुझे इसमें मूवी याद आती है, एक पान सिंह तोमर मूवी है, उसका एक डायलॉग है, ये रेस का एक असूल होता है जनाब, आपको इसको पूरा करना पड़ता है। तो ये एक रेस ही है, अगर आप इसमें घुसे हो तो आपको इसको पूरा करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नेवर गो एनीवेयर इन योर लाइफ। सो हाँ ठीक है। तो इसलिए इसको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है आपने कोई लाइफ में कमिट की कोई चीज़ तो उसको आप छोड़ सकते हो मिडवे, ये एक तरह से एक साउंड स्ट्रेटजी नहीं है, क्योंकि ऐसे तो आपका एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कोई, क्योंकि जितने भी मैं लाइफ में लोगों से मिलता हूँ उनके साथ मैंने देखा है कि मान लो उनको कोई कॉलेज के टाइम किसी एग्ज़ाम में अपियर हुए, नहीं हुआ, उन्होंने छोड़ दिया कि ठीक है दूसरा कर लेंगे एंड इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट ये उनका एक बिहेवियरल पैटर्न डेवलप हो जाता है, एक लूजिंग मेंटालिटी उनके अंदर डेवलप हो जाती है, फिर किसी और चीज़ में जाएंगे वहाँ भी वो मतलब कम में सेटल होना सीख जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपने एक बार चीज़ कमिट कर दी तो कर दी, उसके बाद आप उसको और इम्प्रोवाइज़ करो और थोड़ा सोचो कैसे क्या होना है। अब सिविल सर्विस की बात करें तो ये मेरे पास अभी 5 अटेम्प्ट बचे हैं सिविल सर्विस के, इसके अलावा अब सिंस मेरा फॉरेस्ट में भी हो गया है तो 2 साल के फॉरेस्ट की ट्रेनिंग हो गई, उस दौरान मैं उसको दे नहीं सकता सिविल सर्विस को इंटरव्यू, सॉरी सिविल सर्विस का फॉर्म नहीं भर सकते। ये वाला अटैम्प्ट मेरी तरफ से मेरा लास्ट थी, उसके बाद तो आई वुड बी कमिटेड टुवर्ड्स द फॉरेस्ट सर्विस ओनली, बिकॉज इन माई पर्सनल ओपिनियन ऑल्सो फ्रॉम बिगिनिंग फॉरेस्ट सर्विस मेरे लिए बहुत ही प्रेस्टीजियस सर्विस थी। मतलब अगर मेरा 2020 में भी फॉरेस्ट सर्विस निकल जाता तो मैं शायद उसी में रह जाता, मेरे को वो काफ़ी ज़्यादा उसके लिए मेरा रेस्पेक्ट भी है। और अगर हम उसकी पॉपुलैरिटी की बात करें तो आई थिंक IAS IPS के बराबर ही उसका भी रिकॉग्निशन है, और उनका सिंस दीज IAS IPS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, दीज 3 आर ऑल इंडिया सर्विसेज एज रिटन इन आर्टिकल 312 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन 3 सर्विसेज का एक अलग ही हो रहा होता है, ये तीनों सर्विसेज फील्ड से जुड़ी है, तीनों सर्विसेज आपके एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन है कंट्री की। और किसी भी डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो IAS IPS और IFS ये तीनों ऑफिसर हमेशा कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि इनके अलावा काम हो ही नहीं सकता। और इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री लाइक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है, वहाँ पे तो एंटायर सिटी इज़ इन द फॉरेस्ट, द लैंड इज़ ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द कस्टोडियन इज़ DFO। तो वहाँ पे तो नगर निगम का CEO हो गया, SDM की पोस्ट होगी, दीज पोस्ट आर ऑल्सो फिल्ड बाय द फॉरेस्ट सर्विसेज। सो ये मेरे लिए इस सर्विस की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट भी था, और एक तरह से नेचर की तरफ इंक्लिनेशन भी है, जिसकी वजह से कि मुझे इसमें जाने का मन था शुरू से ही, कि कोई और जॉब तो नहीं होगी जिसमें आप कुदरत के इतना करीब भी रहो और स्वस्थ रहो, जैसे आपको यू आर पेड फॉर द योर ड्रीम जॉब। एंड इसकी ट्रेनिंग भी बहुत ही फैसिनेटिंग होती है, ऑल द नेशनल पार्क्स इन द कंट्री, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, प्रिस्टीन इकोसिस्टम्स, सो ये आप सब विज़िट करते हैं उस दौरान, और काफ़ी अच्छा उसमें एटमॉस्फेयर होता है। सो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बहुत ही एस्टीम्ड सर्विस है मेरे लिए। और इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो IPS भी एक तरह से देखा जाए, अगर मुझे फ्यूचर में मिलता है तो आई वुड नॉट फेवर दैट, बिकॉज these two are very similar to services. In IFS we get the both charm of both the services as we get in the IAS and IPS, because in forest service general administration भी आप देखते हो, and forest guard and policing power of that region also comes under you. So administration as well as policing दोनों इसके component हैं। So ये एक तरह से बहुत अच्छा पैकेज है। और अगर हम बात करें वर्क लाइफ बैलेंस की तो IAS IPS में वर्क लाइफ बैलेंस कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाता है, कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन रहता है, आपका पीपल्स इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है, बट इन फॉरेस्ट सर्विस ये भी मैनेज हो जाता है, तो आप एक अच्छा लाइफ लीड कर सकते हो। इस हिसाब से फॉरेस्ट मेरे लिए सेटल होने लायक सर्विस है। तो अब उसके बाद में उसको इस बार का अटैम्प्ट देखते हैं क्या रहता है। UPSC 2024 का प्रीलिम सब आई थिंक 10-12 दिन बाद इंक्लूड है, तो उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है। बट
देखते हैं उसमें सी सेट कैसा आता है इस बार और कितना पढ़ने के बाद क्या उसका आउटकम रहता है। बट मोटिवेशन इज़ द की, और इनर मोटिवेशन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन, क्योंकि बाहर से जो मिलने वाला मोटिवेशन है वो तो इवेपोरेट होने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और किसी को देख के आप कुछ कर रहे हैं तो वो भी एक सॉलिड बैकअप नहीं है। आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि मुझे ये करना है, कुछ अच्छा करना है, तभी कर पाओगे। क्योंकि मैंने अपनी जॉब जो मेरे सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में मैं 2020 से ही अभी तक पोस्टेड हूँ, तो वहाँ की वर्क स्टाइल काफ़ी अच्छी है, वैसे डिसेंट वर्क है वहाँ पे भी, मतलब बैलेंस वर्क लाइफ बैलेंस भी है और सब तरह से बढ़िया है। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनली उसमें देखता हूँ तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आप जितना ज़्यादा जो लोगों से जुड़ सकते हैं, आम जनता से जितना जुड़ के काम कर सकते हैं और उनकी लाइफ में जितना पॉजिटिव डिफरेंस ला सकते हैं, वो एक अलग ही नोबल परस्यूट है। तो उसका कोई सानी नहीं है। अगर ये मौका अगर मेरे को फॉरेस्ट से मिल रहा है जहाँ पे ट्राइबल और फॉरेस्ट ड्वेलर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनको लाइवलीहुड को बेटर बनाया जाए और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन किया जाए, इकोसिस्टम को बचाया जाए, क्लाइमेट चेंज जो कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा सीवियर होने वाला है, तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो IFS इज़ लाइक इंडियन फ्यूचर सर्विस, as many of our batsmen also say that IFS should be Indian future service, because in future we have to save our climate and ecology and all that, and in that perspective IFS would be a great service to join. So I will conclude my interview and this session from that remark. If anyone wants to ask something, then please ask. If किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, अदरवाइज वी विल वाइंड अप दिस सेशन।